Hi all, a warm welcome to my channel P3 Talks, Perceive, Practice and Prevail। SSB इंटरव्यूज में सेलेक्ट होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उनको एनालाइज करना भी जरूरी है एंड उस पर्टिकुलर न्यूज के, उस पर्टिकुलर करंट अफेयर के इंडिया के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं most important lecturate topics for SSB 2020. Now, lecturate is a part of GTO task in which you will be asked to pick a chit on which 4 topics would have been written. Now, out of the 4 topics, आपने एक topic choose करना है and you will get 3 minutes to prepare on that topic and then for 3 minutes continuously without stopping, you have to speak. Now, what happens is most of the candidates fear this test because of lack of knowledge and hence confidence. Maximum candidates को ये लगता है कि जीके इम्प्रूव करने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, हमें तो कोई भी टॉपिक मिल सकता है लेक्चरेट में, कोई भी टॉपिक मिल सकता है जीडी में, हम कितना प्रिपेयर करेंगे। But from my personal experience of getting recommended and then further guiding several aspirants, I can certainly tell you that अगर आप थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क से कुछ टॉपिक्स अगर आप प्रिपेयर करके जाएंगे, ट्रस्ट मी, लेक्चरेट एंड जीडी इज गोइंग टू बी द इजीएस्ट थिंग फॉर यू टू क्लियर। करने से पहले आपको 5 डेज एसएसबी इंटरव्यू प्रोसीजर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है ये मैंने इस वीडियो में बनाई है एंड इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। SSB, there are 3 important things. First, knowledge, confidence and presentation. Knowledge, I would call it as the K word. The K word is the most important thing in the lecturate in this digital world when most of the candidates are aware of GD and lecturate and the importance of current affairs when they are coming for SSB. Now, you think in spite of knowing the importance, the aspirants don't come prepared, and this is the reason they get rejected because they are ignorant. If you are passionate enough for armed forces, I don't see any reason for you to not prepare for current affairs. Second thing is confidence. SSB is a test of your confidence as a person, how confident you feel, how confident you look when you talk. All these things can be improved from preparation, and through this preparation you are going to gain knowledge. You are going to become more curious. जितना क्यूरियस बनोगे, जितना नॉलेज गेन करोगे, उतना आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे एंड आप कॉन्फिडेंट हो, यू हैव प्रिपेयर्ड, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर एसएसबी। Third, presentation. Again, I have already discussed SSB is a projective technology. You have to project your qualities if you want to get selected. As simple as that. And I don't see any reason for you to not prepare for current affairs if you are going for SSB. Now, एक और क्वेश्चन जो कैंडिडेट्स टाइम एंड अगेन पूछते रहते हैं वो ये है कि अगर हमने करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं करी है, हमें बिल्कुल कुछ नहीं आता है, हमें कभी न्यूज़पेपर हमने नहीं पढ़ा है और अब हमें एसएसबी जाना है, अब हमें क्या करना चाहिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल I want you to know that even if your base of general awareness is 0 and you have at least a month, अगर आपके पास 1 महीना भी बचा हुआ है एसएसबी जाने से पहले, I would say कि ये 1 महीना आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है अपने आप को एसएसबी के लिए तैयार करने का। एंड आई एम श्योर एवरीबडी हैज़ गॉट 1 month बिफोर देयर एसएसबी बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन पीरियड गोइंग ऑन। So what I'm going to do is I am going to give you a basic list of topics. इन टॉपिक्स को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो टॉपिक आपको लेक्चरेट में मिलेगा, कोई टॉपिक जो आपको जीडी में मिलेगा, वो इन टॉपिक से कैसे न कैसे तरीके से वो रिलेटेड होगा। नाउ यू हैव टू बी पेशेंट और थोड़ा सा आपको हार्डवर्क यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट कैटेगरी दैट आई हैव टेकन इज इंडिया एंड इट्स नेबर्स। अब इंडिया एंड इट्स नेबर्स में जो भी इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं ना आसपास के, उनके सारे आपको रिलेशंस पता होना चाहिए। इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ अफगानिस्तान, सो गो बैक टू द हिस्ट्री ए लिटिल बिट, 2-3 पॉइंट आपको हिस्ट्री के बारे में पता हो, देन यू हैव टू थिंक फ्रॉम इंडियाज़ परस्पेक्टिव कि हमें इस रिलेशनशिप से क्या गेन हो रहा है, हम कोई वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या, हम वहाँ पे कोई पोर्ट बना रहे हैं क्या, वहाँ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वहाँ पे हम कितना इन्वॉल्व हैं, अगर अफगानिस्तान या किसी और कंट्री के साथ कोई रिलेशन है उसमें हम कितना इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल न्यूज़ में अभी चल रहा था
यूएस तालिबान डील के बारे में। अफ़गानी गवर्नमेंट है वहाँ पे इंडिया किसको सपोर्ट करती है, यूएस तालिबान डील में इंडिया ने सपोर्ट किया या नहीं किया, हमने अफ़गानिस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है और हम कितना बॉर्डर उनके साथ शेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप थोड़ा सा भी देख लेंगे तो दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज गोइंग टू बिकम वेरी सिंपल फॉर यू। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, इंडिया इन इट्स नेबर्स में चाइना की अगर बात करें ना, चाइना वाला जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम लेक्चरेट, जीडी एंड योर पर्सनल इंटरव्यू, तीनों। ये चाइना वाला जो टॉपिक है हर किसी के एसएसबी में हमेशा ही आता है। तो चाइना वाले टॉपिक को आप डीप में करिए, आप पूरे हिस्ट्री में जाइए, कौन कौन से वॉर थे, कैसे उन्होंने अपने आप को ग्रो किया है, कैसे इंडिया ने ग्रो किया है, दोनों को कंपेयर करिए, इंडिया और चाइना की मिलिट्री की कैपेबिलिटीज़ को कंपेयर करिए। देन रिसेंटली जो बॉर्डर इश्यूज़ हुए हैं इंडिया और चाइना के बीच में उनके बारे में आप बात करिए। देन न्यूज़ में जो चल रहा है, मे बी यू कैन टॉक अबाउट अरुणाचल प्रदेश वाले जो एरिया है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, ब्रह्मपुत्र पे चाइना ने काफ़ी सारे जो बेंड्स हैं वहाँ पे ब्रिजेस बनाने की उन्होंने कोशिश करी है और बनाए भी हैं, हम उसकी रिटेलिएशन में क्या कर रहे हैं, साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या है, पाकिस्तान के ऊपर क्या है, चाइना के ऊपर क्या है। तो ईच टॉपिक दैट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, प्लीज स्पेंड एटलीस्ट 2 hours ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाइए, हिस्ट्री के बाद इंडिया के रेलेवेंस से उस टॉपिक के बारे में बात करिए एंड देन यू शुड टॉक अबाउट कि रिसेंटली न्यूज़ में क्या चल रहा है। नाउ इट्स जस्ट ए सजेशन फ्रॉम माय साइड कि आपको जीडी एंड लेक्चरेट के लिए एक अलग से नोटबुक मेंटेन करना चाहिए एंड उस नोटबुक में आप एक इंडेक्स बनाइए, राइट डाउन ऑल द बेसिक टॉपिक्स, लीव 3, 4, 5 पेजेस फॉर इंडेक्स एंड इंडेक्स के बाद जब आप फर्स्ट टॉपिक डालेंगे तो उस टॉपिक के लिए लीव एटलीस्ट 10 पेजेस एंड 10 पेजेस को आप ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि फ्यूचर में उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है तो आप फटाफट जाके उस टॉपिक में उसको ऐड कर सकते हैं। ऐसे क्या होगा, आपके पास एक कंसोलिडेटेड मटेरियल होगा व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर एसएसबी। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो प्लीज़ गो एंड डाउनलोड इट and start preparing. Thank you so much for watching my video. If you found the content helpful for your SSB preparation, please press the like button, and in future if you are interested in these kind of videos, subscribe to my channel. Do not forget to click on the bell icon so that you get the notification as soon as I upload a video. Also, if you have any questions regarding your SSB preparation and any feedback on the videos, you can comment on the given box below and I will get back to you as soon as possible.